Good morning, students. Today we will take another class of SDM. So, till now we have covered that is organization cell structures also, and in the last classes we have discussed about that is the recruiting of sales forces and other two methods of the sales organization structure. Students, so it is a very important topic we have to discuss now, that is the recruitment process. Before about the recruitment process, I am going to say about the factors affecting the recruitment policy. Last class we have also discussed. Let us highlighting some things about it. So recruitment policy is concerned with the quality and the qualifications of the manpower, and it establishes the broad guidelines of the staffing process, and it involve the recruitment policies. It consists of the number of recruit desired, the recruitment sources, the recruitment needs, the recruitment cost, the size of the sales organizations, rate of turnover, as well also we have discussed that is the forecast the sales volume, government policies, the personal policy of the competing organizations, as well also organizational personal policy we have also discussed. Now today we will discuss about the recruitment process. So, we have to discuss about the various steps. What is the process? Because already we know that is recruiting is a positive process that we know very well. It in which the company attract a pool of talented people to work for the betterment of the organization, to increase the sales volume and to maintain the sales and distribution function, and taking the overall charges of the marketing. Okay, and for this purpose, what happens? The company what requires the talented and the experienced people, sales people. Sometimes some companies they are also avoiding the what? That is companies reducing the cost by appointing the faithful, that is the what happened, talented, and that is the what happened, experienced sales people. How the company is reducing the cost? The company is reducing the cost through that is the what happened, not by that is not providing training class. If the company is having or that is recruiting the freshers, then companies what happens, that is spending large amount of money for the what, that is to make them work efficiency. So in order to provide the what happened, to ensure the new recruiter have the aptitude necessary to be successful, mostly in a particular type of sales job, because it is a type of the mostly a appointing a not in a the people should not work in a four wall of the corner inside the four wall. So he should have that is a wide knowledge on the marketing. He should have a wide knowledge on the sales. He should have a wide knowledge on the that is the area. Okay, so that he should have a wide knowledge on the product. Okay, so at least the company is also providing the product knowledge to the sales people in order to enhance the market, to capture the market. Okay, because today the market is what happened, cutthroat is running with the cutthroat competitions.
ओके, कटथ्रोट कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि हमें दौड़ के मार्केट को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो वो इनमें से वो कुछ प्रोसेस है जो कि मैं डिस्कस करूंगा। वो जो प्रोसेस है, लेट इट बी व्हाट आई मीन प्रोसेस। इस प्रोसेस से फर्स्ट प्रोसेस में डिस्कस करूंगा। प्रोसेस 1 में कंडक्टिंग ए जॉब एनालिसिस, नंबर 2 पॉइंट preparing a job description, third developing set of job qualification, then fourth, that is attracting a pool of applicants. Under the 4 headings we have to discuss it. First, students listen here. What happened? The conducting the job analysis. What do you mean by the conducting of the job analysis in this process? So here what happened? Before a company can search for a particular type of salespeople, for the particular type of salesperson, it must know something about the sales job. Okay, sales job के people को हमें समझाना चाहिए. The people those who are coming और पर्टिकुलर सेल्स पीपल को उनका जॉब क्या है उनको डिस्क्राइब करना चाहिए. दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज हाउ मच दैट इज सेल्स जॉब इज टू बी फिल्ड अप, दैट यू हैव टू नो इट. इन ऑर्डर टू एड इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपन, ए जॉब एनालिसिस मस्ट बी डन. जॉब एनालिसिस का मतलब है आइडेंटिफाइंग द ड्यूटीज, रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंडीशंस इन्वॉल्व इन द जॉब. क्या है कंडक्टिंग? जो जॉब एनालिसिस करेंगे, जॉब एनालिसिस में वी हैव टू आइडेंटिफाई द जॉब, आइडेंटिफाई द ड्यूटीज. हमें जिन लोगों को यहाँ पे अपॉइंटमेंट देना चाहेंगे उनका ड्यूटी क्या है वो भी हमें पहले से ही बनाकर रखना चाहिए. देन कितना रिक्वायरमेंट है उनको भी ये भी हमें पता लगाना चाहिए. उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा और या उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है. जो ट्रेनिंग देंगे, जो उनका बॉस का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो आएंगे उनका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. देन वी हैव टू से दैट इज इन व्हाट कंडीशंस दैट इज द इन्वॉल्व इन द जॉब, दैट वी हैव टू फाइंड इट. एंड प्रॉपर जॉब एनालिसिस इन्वॉल्व यू हैव टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स. क्या फॉलोइंग स्टेप्स लेना है? सो इसके में जो हम फॉलोइंग स्टेप करना पड़ता है दैट इज यहाँ पे दैट इज वी हैव टू मेंटेन दिस थिंग्स. व्हाट? Analysis the environment. I will discuss you. Analysis the environment. Okay. Then the nature of the competition. First. Then nature of the customer. Then that is degree of knowledge. Then determine the duties and responsibilities. जो यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे दैट इज सेल्स पीपल
customer and sales manager and executives. सारांश में मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया. एक्चुअली इफ विल से द इन द जॉब एनालिसिस यू हैव टू फाइंड द टू थिंग्स. एनालिसिस द एनवायरनमेंट on which the sales people must have to work, and you have to determine the duties and the responsibility of the people. That is the salespersons what we have, that is appointed. Okay. So my dear students, यहाँ पे actually जब analysis करना है in which the salesperson has to work, हमें find out करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए किस एनवायरनमेंट में ये लोग काम करेंगे. जो सेल्स पीपल यहाँ पे आएंगे वो कौन से एनवायरनमेंट पे ये लोग काम करेंगे वो भी देखना चाहिए. और हमें फॉर एग्जांपल टेक दैट इज द नेचर ऑफ द कंपटीशन फेस्ड बाय द सेल्स पर्सन. ओके, इन व्हाट वे द सेल्स पर्सन शुड फेस द competition, what type of competition they have to face it, and other also that is what type of customer the sales people have to connect, that we have to find it. And besides that, when we are discussing about the type of the customer, so generally we have to discuss about that is what happen, kind of the problems also associated to the customer. कौन सा problem भी associated है उसको भी हमें find out करना है. And after that what happen, that is degree of knowledge भी हमें find out करना है. कौन सा degree माने उनका degree, उनका knowledge, उनका skill, that is a potential, because it is very essential in order for a particular position. That we have to find when we analysis the environment under which the salesman should work. Salesman work करने के लिए हमें यहाँ पे that is nature of the competition faced by the sales person को देखना चाहिए. Nature of the customer, that is the salesman should face or should connect, as well as what happened, that is what kind of questions they are or problems getting from the or by the customer, that salesman had to be adjusted. Okay, another we have to find it, that is what is the degree of the knowledge and the experience, the skill, the potential of the salesperson, that is they have to handle such type of customer and the such type of what, that is the competition in the market. And another we have to determine the duties and the responsibility. Duties and the responsibility जो हमारे यहाँ एक्सपेक्टेड करते सेल्स पीपल में, हमें इंफॉर्मेशन जो कि ऑप्टेन, हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे, सेल्स पीपल से, कस्टमर से, सेल्स मैनेजर से, वेरियस जो कि एग्जीक्यूटिव मैनेजर होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर होते हैं वहाँ पे से एडवर्टाइज मैनेजमेंट मैनेजर हो या दैट इज मार्केटिंग सर्विस मैनेजर हो या डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, इनमें से जो भी कुछ इंफॉर्मेशन आता है तो हमारा ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसको वर्क करने के लिए. हमें ड्यूटी बनता है कि उट इज डिटरमाइन करना है, दैट इज ताकि हमें अच्छी तरह काम में क्या ला सकते हैं. ये इसके बावजूद थर्ड पॉइंट पे अनदर एक पॉइंट है जो कि वी हैव टू स्पेंड टाइम कॉल्स, दैट इज टाइम कॉल्स विद द सेवरल पीपल्स. सेल्स पीपल को हमें दैट इज वी हैव टू मेक ए यूज द टाइम call recording the various tasks of the jobs taken by them and actually how they have to work. That should be done with the various different types of the customer as well as the respective period. Because चार मैंने कहा मार्केटिंग का जॉब ऐसे शानदार जॉब है और एक ऐसे अच्छा जॉब है कि घूमना फिरना जॉब है, माइंड ब्लोइंग जॉब है. सो हमें चार दीवार पे बैठ कर टेंशन लेना नहीं, सिर्फ मैंने इतना तुम्हारा क्या कस्टमर होल्डिंग होना चाहिए ताकि आराम से तुम्हें मार्केटिंग जॉब भी कर सकते हो. सो ये है दैट इज द व्हाट हैपेंड, दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन दैट इज द व्हाट हैपेंड कंडक्टिंग द जॉब एनालिसिस. ये कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस होने के नाते नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट व्हाट हैपेंड, दैट इज द प्रिपेयरिंग ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन.
And students, job description. What do you mean by the job description? हमें जब एनालिसिस करने के बाद जॉब डिस्क्रिप्शन करना चाहिए। इसका मतलब इट इज यूज्ड इन रिक्रूटिंग प्रोसेस, इन सेलेक्टिंग प्रोसेस, इन ट्रेनिंग प्रोसेस, इन कॉम्पेंसेटिंग प्रोसेस एंड इवैल्यूएटिंग प्रोसेस। एंड यहाँ पे जो भी कुछ हमें यहाँ पे एनालिसिस किया, कैसे रिक्रूटमेंट किया जाए, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट दैट यू हैव टू टेक इट, and how we have to select the right person to the right job that we have to make it, okay? And after selecting whatever, we have to give them good training so that they should whatever उनको मैंने जैसे ट्रेन रेडी होने में क्या होता है, ट्रेन जब रेडी हो गया ना उसे क्या पटरी तक लाना पड़ता है, पटरी के ऊपर इंजन को जोड़ देने से ट्रेन चला गया, ट्रेन जाते वक्त उसे कंट्रोल करना पड़ता है, उससे भी हमें पता है। जैसे यहाँ पे पता है दैट इज व्हाट हैपन रिक्रूटमेंट प्रोसेस आफ्टर सिलेक्ट, दैट इज रिक्रूटिंग के बाद सिलेक्टिंग करना है, क्योंकि बहुत सारे पीपल डालेंगे, वहां पे कुछ एफिशिएंसी होंगे, वहां पे इनएफिशिएंसी भी लोग होंगे, कोई भी हमारा लायक होगा, कोई भी हमारे लायक भी नहीं हो पाएगा। तो ये तो क्या होना चाहिए, सो रिक्रूटिंग करना पड़ेगा, रिक्रूटिंग के बाद उन्हें हमें सिलेक्शन भी करना चाहिए राइट पर्सन, सो ऑटोमेटिकली फाइनल पोजीशन ये टू गेट हिम इनटू द इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हमें जब इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ला दिया हमें, वहां पे हमें उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्रॉपर ट्रेनिंग इसका मतलब दे हैव टू वर्क विद इन दैट इज फुली ट्रेनिंग दिया जाए। जब उन्हें छोड़ दिया जाए तब मार्केट में वो एक्चुअली दे विल वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो ट्रेनिंग के बाद उन्हें कॉम्पनसेशन देना भी देखेंगे। कॉम्पनसेशन का मतलब बेनिफिट टू द कस्टमर, बेनिफिट टू दैट ऑफ द सेल्स पीपल आल्सो, उनको भी देखना चाहिए। इस सेल्स फोर्स का एक क्या पार्ट है, ओके। कॉम्पनसेशन का पार्ट उसे इवैल्यूएट करना है, कितना हमें दैट इज यहाँ से जो हमें प्रोसेस में किया, जो जॉब डिस्क्रिप्शन किया, जो प्रिपेयर किया, वो कितना सही है, दैट इज हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इवैल्यूएट करने के बाद वहां पे डिस्क्रिप्शन को हमें राइटिंग में देना है। कभी भी मुंह में नहीं कर पाएंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन को मुंह में नहीं बता पाएंगे, हमें वी हैव टू राइट इन द व्हाट हैपन, दैट इज इन द रिटन मैनर, एंड वी हैव टू व्हाट हैपन, it can be referred to the frequently also. The written job description must be a what happen, that is prospective job applicants. जॉब एप्लीकेंट को फाइंड करना है, एज वेल एज कितना प्रोस्पेक्टिव जॉब एप्लीकेंट से उसे देखना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव जो कि बहुत टैलेंटेड होते हैं, और एज वेल एज हमें यहाँ पे करंट सेल्स पर्सनल को भी देखना चाहिए, उनके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेल्स पोजीशन में है वो भी फाइंड करना है चाहिए, और वी हैव टू मेजर इट ऑन व्हाट द बेसिस दैट न्यू एम्प्लॉयज विल बी इवैल्यूएटेड, और ये किस तरह इवैल्यूएट हो गए उनको भी हमें न्यू एम्प्लॉय को भी देखना चाहिए। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल टूल आई एम टेलिंग, इट इज यूज्ड इन द मैनेजिंग द सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स को मैनेजिंग करने के लिए सेल्स डिस्क्रिप्शन जरूरी है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इट प्रूव्स दैट इज व्हाट हैपन सेल्स ट्रेनर विद अ डिस्क्रिप्शन टू दैट ऑफ द सेल्स पर्संस, ओके, जो कि उनका ड्यूटीज को एनेबल करना है, उनको एनेबल इनटू हाउ टू क्रिएट अ डेवलपिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग डेवलपिंग प्रोग्राम बेटर वी कैन से, ओके, उनको लाकर खड़ा करना में बहुत दिक्कत है। जैसे एक छोटा बच्चा जब धरती पर आ जाते हैं उसे खड़े करने में हमें 1 साल लग जाता है ना, उसी तरह हमें यहाँ पे बहुत शीघ्र उनको ट्रेनिंग दिया जाए, और किस तरह की उनको अचीवमेंट उनके जो फुलफिल जो है, जो कंपनी का सपना है और उनका इंडिविजुअल भी सपना होता है, उसे कैसे सपने तक पहुंचेंगे ये भी उन्हें हम ट्रेनिंग देकर उन्हें खड़ा कर देंगे। सो इसके बाद हमें जो कॉम्पेंसेशन प्लानिंग भी है ना देना चाहिए, डेवलपिंग कॉम्पेंसेशन प्लान भी है, और यहाँ पे सुपरविजन, मोटिवेशन, देन उसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को भी लेना चाहिए, और डिटरमाइन करेंगे वेदर द सेल्स पर्सन इज हैज ए रीजनेबल वर्कलोड और नहीं। हमें फाइंड आउट करना चाहिए दैट इज आर दे वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विद a depressed manner, or they have the full burden of work, or they have working freely, that we have to identify it, okay, because pressurized में काम में बहुत नेगेटिव आ सकता है। अगर पॉजिटिव वर्क थिंकिंग होगा, पॉजिटिव वर्क मेथड होगा तो इनमें से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, okay. This is the what happen, that is mostly that is preparing a job description. Another that is what happen, we have to say about the
developing a qualifications. Okay. सो माइंडेड स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे जब डिस्कस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा तो दो पॉइंट है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं. सो यहाँ पे डेवलपिंग में क्या होता है, सो उनका पहले प्रिपरेशन हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन, देन इसके बाद डेवलपिंग करेंगे. डेवलपिंग ए सेट ऑफ द जॉब क्वालिफिकेशन. यस, व्हाई वी आर हैव ए क्वालिफिकेशन? बिकॉज वी हैव attained that much of knowledge, not practically, but in the what, that is book knowledge we have that. आजकल हमें बीबीए एमबीए में जो भी होता है, ये लोग प्रैक्टिकल नॉलेज भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग दे आर गेटिंग आल्सो. But in normal education they don't have, they have only the practical, that is what happened, the knowledge getting from the books or any other things. But here we have to, when they are entering the job, we find that is the job description, then you have to develop a set of the qualities or the qualifications must be there, and it should be converted. job description को ही convert किया जाएगा set of qualification को. जो हमें पहले job description हो गया, जॉब क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, ये सेल्स मैनेजर या मैनेजमेंट डिस्क्राइब कर दिया. इसके बाद हमें क्वालिफिकेशन को देखना चाहिए. क्वालिफिकेशन मतलब that recruitment should have in order to perform the sales job satisfaction. जब that is sales job satisfaction लाने के लिए उतना क्वालिटी और क्वालिफिकेशन जरूरी है, और उस क्वालिफिकेशन के उस ऊपर ही हम उन्हें क्या एक्सेप्टेड कर सकते हैं. That we have to think about here. And another, we have to determine the qualification, that is probably a difficult aspect of the entire thing. So we cannot ignore these things. We cannot ignore. Okay. And recruitment process भी करना चाहिए. Specific qualification जैसे एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस हमें देखना पड़ता है. कितना साल ये लाइन में एक ही कैटेगरी में कितना साल वर्क किए उसे हमें देखना, क्योंकि मैंने पहले से बोल चुका हूँ कि दैट इज कॉस्ट कंट्रोल भी हो सकता है. अगर एक्सपीरियंस पीपल लेंगे तो हमें उन्हें ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है. अगर एक सेम मॉडल में सेम कंपनी में अगर सेम वे में अगर सेम मॉडल में अगर काम कर रहे हैं तो हमें उनको क्या दैट इज ट्रेनिंग नहीं दे सकते. आराम से वो काम कर सकते हैं. दे कैन इजीली आइडेंटिफाई टू वर्क मोर सेफर देन दैट ऑफ द एनी अदर. So, and most of the firm also trying to what happened, identifying their personality traits. Mostly they have building their self confidence also, and aggressive is also there. Such type of what happened, better super, that is salesperson must be included. And another, that is my dear students, you have to say it, but we have to fourth category, that is what happened, attracting the pool of the application. यहाँ पे जो attracting the pool of application जो जहाँ पे यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. सो बेटा देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, किस तरह की करेंगे. नेट द इंपोर्टेंट रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस यहाँ पे होता है, एप्लीकेंट को लाएंगे. एप्लीकेंट वेरियस ऑफ एप्लीकेंट आने के बाद ही हमें उनको सेल्स पोजीशन को राइट पीपल तक पहुंचा सकते हैं. राइट पीपल तक हमें जो भी चाहिए उसे हमें दे सकते हैं. ओके, सो हमें यहाँ पे ए लार्ज नंबर ऑफ ऑल लार्ज कंपनीज व्हाट हैपन, दे हैव अ कंटिन्यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स. They were always locating all the things. They are always attracting the potential of the effective sales people. And another what happened, the candidate also recruited become the reserve pool. Reserve रखते हैं. reserve का मतलब है इस गाड़ी में रिजर्व रखते हैं. अगर डायरेक्ट चला गया, हमने कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, अगर तेल खत्म हो गया ना, रिजर्व में गाड़ी चल सकता है. सो यहाँ पे रिजर्व पूल भी रखते हैं ताकि सेल्स स्टाफ को अगर कुछ दिक्कत हुआ, सेल्स पीपल या सेल्स टीम में अगर कुछ निकल गए कुछ है तो हम उनको वहां पे प्लेस में दैट इज टेक ले जाएंगे, या वी हैव टू टेक देम इनटू द वर्क आल्सो. द क्वालिटी ऑफ दिस ग्रुप आल्सो प्रेडिक्ट द फ्यूचर सक्सेस आल्सो एंड द प्रॉब्लम्स दे हैव ऑल द एसोसिएटेड विद द सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस. सो स्टूडेंट्स, सो दिस इज द व्हाट हैपेंड, दैट इज वी हैव दैट इज रिक्रूटिंग द सेल्स प्रोसेस. And
रिक्रूटमेंट का और भी है, हमें जो भी लास्ट क्लासेस में मैंने कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द व्हाट हैपेंड, दैट इज sources of recruitment. Okay, top day by day, that is one by one of the topic you have to go through it. My dear students, now you understand that is the what is the recruitment process. So recruitment process के लिए हमें what happen, that is we have to take we have to conduct a job analysis, and job analysis के बाद उसे हमें job description भी बनाना पड़ेगा, और job description के बाद हमें develop करना है job qualification जो कि essential for the organization, and after that we can get a pool of applicant. Means conceptually what happened, we can say that is the job analysis. Really, what is job analysis? Then after job description, okay, job description के बाद what happened, qualification, okay, qualification setting, okay, qualification setting, okay. Then after that what happened, that is okay, number of applicants. Indirectly we can say this what happens, यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर बनाया गया, यहाँ पे उसे स्ट्रक्चर को डिस्क्रिप्शन दिया गया, प्रॉपर्ली टोटली वर्कआउट किया गया, वर्कआउट करके हमें फाइनली सेटअप करने लगे कितना हमें क्या चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन हमें जो मैंने जो क्वालिटीज चाहिए सब भी, देन इसके बाद हमें डिसाइड किया कितना हमें एप्लीकेंट चाहिए, एंड रिजर्व भी मैंने रखा था ना, उसमें जो रिजर्व रखना चाहिए, आजकल तो बहुत होते हैं, जैसे कंपनी मैंने एम्प्लॉयर इज आल्सो अफ्रेडिंग ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय इज आल्सो अफ्रेडिंग ऑफ एम्प्लॉयर. कभी कभी कंपनी डिसाइड करता है कि ये लोग छोड़ देंगे, हमारे इतना काम को टर्चर मैंने उनको लगेगा और ये नेचुरली दे विल लीव द कंपनी. कभी कभी एम्प्लॉय भी सोचता है कि हमें ये एम्प्लॉय भी निकाल देंगे. दोनों का साइड में दैट इज ताना लगता है, बट इसके हिसाब से भी हमें अलर्ट रहना चाहिए. एम्प्लॉय भी ढूंढता रहता है नया जॉब, और एम्प्लॉयर भी रिजर्व करके रखता है नया एम्प्लॉय. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट. सो रिक्रूटिंग प्रोसेस को हमें ये लेना चाहिए. My dear students, go through the all the topics, get acquainted all the subjects. Okay, thanking you. Stay home, stay safe.